बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन में कंट्रोल में है, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में बायो कंट्रोल भी हो सकता है, और दूसरी तरफ डायग्नोस्टिक्स, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, डायग्नोस्टिक्स में इसकी यूजेज है। और you know, as we have learned through the course a lot about the systematics of microbiology, and we have learned that in the past 40 years particularly, the microbial systematics has not only developed but changed significantly, right? So I mean, considerably we have changed the ways how we can define microbial species, how we can, you know, come to the identification of microbial species. The pipelines have drastically evolved and quite stably now performing. You know, it is not much change in the pipeline आफ्टर डेवलपमेंट। पास्ट 40 years डेवलपमेंट के जरूर हैं, लेकिन 15 या 20 साल के, क्योंकि मैंने आपको 10-12 साल पहले का पेपर भी दिखाया और फिर रिसेंट पेपर भी दिखाया। So it is not much change. It means that the methods which we are using right now, they are quite good in performance to understand the systematics, and we are satisfied. I mean, the polyphasic approach which we are applying, we are satisfied with the results about the identification. Like, we are not having ambiguities, we are not having misleading results, mostly as we understand it today. So we can say that the methods which we are acquiring, they are not only required for reliable identification, but they are also helping us to apply the systematics for understanding of microorganisms quite stably. And on the other part, the information technology, the tools, the databases, our access to the databases and all these things, the timelines and the data lines, online databases and all those things, they have also established the relevance that we can also not only use the techniques, but we can also go back to the databases and we can check into the databases, and then we can get you know, quite stable results out of relevance, जो हमारा previous data होता है उसकी base पे। ठीक है, तो जब हम इतनी ज़्यादा उसकी आइडेंटिफिकेशन और सिस्टमैटिक्स की अप्रोच में चले गए, दैट वी आर आइडेंटिफाइंग एंड देन वी आर पुटिंग, एंड देन वी हैव अल्टीमेटली अंडरस्टूड दैट जो एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबियल रिसोर्सेज है, that has not remained to the level of biotechnology, that has not remained to the level of agriculture, poultry, or diagnostics, or probiotics, or bioprocess, or biofuels, but it is the time where we have started to invest in the future of microbial resources in terms of culture collections or in terms of resource centers. Am I right? Yes, ma'am. Earlier, you see, जब हमने कोर्स शुरू किया था, I have not at all given you a hint about it. जब हमने बात की थी कि क्या होती है, तो हम बात करते थे कि एवोल्यूशन के लिए ये हमें हेल्प आउट करता है, हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए करता है। बट एवोल्यूशन समझ ली, सिस्टमैटिक समझ ली, आइडेंटिफाई कर लिया, एप्लीकेशन उसकी देख ली, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। क्यों देख लिया? बिकॉज दिस इज ए रिसोर्स, राइट? Microorganisms are a big resource to us, and now we have to invest in the future of this microbial resource. And how we are investing in the future of this microbial resource? Not only by developing the pipelines for identification of these microorganisms, but also we are investing in the future of the microbial resource by developing the resource centers or the culture collections, which are the business plans for these microbial resources, that after identification we put them at a proper place, and then we can acquire them for the business plans as and when the time comes or when the need is over there, right? So there is a lot of financial commitment now towards the development of the microbial resource centers or culture collections, and a kind of obligation, or the things are getting mandatory, that yes, the things which we are identifying shall be kept over there. I mean, in the last lecture we have made our understanding that the thing is not very new, that we have right now started to understand. We mean the scientific community who is working, the microbiologists and other aligned scientific community who is working on the microorganism, they have not just now started to understand that they should be kept, because this is quite old. But the thing is that
the time required in the past 40 years, as we have developed the systematics, we are getting not only a lot of authentic information, but we are getting a lot of new microorganisms in hand. And now it also requires that those microorganisms shall be kept with care. And now we have also understood that if they are coming all together in the bacteria and archaea from 18,000 diversified species, but it could be that everyone is having native strains, everyone is having the key strains, and some comes at the level of the type strains of the out of the key strains. You know, अगर आपने novel bacteria वाला पेपर पढ़ा है, तो कितने कितने स्ट्रेन्स पे काम होता है जिसकी बेस पे उसको नॉवल डिक्लेयर कर देते हैं? को 10-15 स्ट्रेन निकलती हैं, फिर उसके बाद कहते हैं ये नॉवल है, रिप्रेजेंटेटिव उसकी। नो मैम, इडियोनेला सेकेंसिस के केसेस में उसको 2 के साथ कंपेयर किया गया था। नहीं, कंपेयर तो 2 के साथ किया गया था। जिनको कंपेयर कर रहे थे, टारगेट कितने थे उसके पास? टारगेट जिसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, कंपेयर तो पूरे डेटा सेट से भी कर सकते हैं। कितने थे उसके पास? वो तो रेफरेंस हो गया ना जिनसे। कितने थे? किसी को नहीं याद? कोई 8, 10, 15 तो होंगे ना? You know, if we look at the new species published in the past few years, like past 15 years, I say, mostly almost 90% or above 90% of the descriptions of the new species, और आप किस कहाँ जा रहे हैं देखने के लिए? मोस्टली IJSEM और IJEB में, ठीक है? Above 90% of the descriptions of the new species published in the past few years were based on the characteristics of a single strain, जिसको आपने novel species declare किया है, type strain declare किया है, वो ज़्यादातर as a single strain isolate हुई, और उस single isolate को जो differential था, आपने उसके characteristics को compare किया previous के साथ, और उसके बाद आपने उसको document कर दिया, and that was designated as the type strain. Okay, it could be that in your laboratory at the same point you had several isolates at that time, and those several isolates were quite similar, and ultimately you figured out that all those several isolates were just your isolates, and even not at a level of the key isolate because they were the re-isolation of the same strain, but that the same strain was a kind of significant enough to take you to the level of novel species, and thus that novel species has entered into or designated as the type strain. Is it okay if I'm saying this? कि वो जो type strain होती है वो फिर document हो जाती है as the representative of that genus or representative of that species. Yes, strain तो species की होती है ना? Yes, ma'am. जब वो first time describe होती है, हाँ, जब वो सब फर्स्ट टाइम जो डिस्क्राइब होता है होती है type तो strain वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाती है उस स्पीशीज की, ठीक है? और अबव 90% पेपर्स जो नॉवल स्पीशीज डिस्क्रिप्शन के आए हैं, नॉवल स्पीशी की जो स्ट्रेन निकलती है जिसको टाइप स्ट्रेन रिकॉग्नाइज करते हैं, अबव 90% पेपर जो है उनमें उस नॉवल स्पीशीज की एक स्ट्रेन को डिस्क्राइब किया जाता है कि ये एक स्ट्रेन है, और फिर ठीक है, मिनिमम अगर आप उसको खोल के पढ़ते हैं स्टडी को या उसको फॉलो करते हैं पूरा, तो फिर ये होता है कि मिनिमम जो है वो उस स्टडी में आपके पास 5 या 10 इंडिपेंडेंट आइसोलेट्स होते हैं, ठीक है? इंडिपेंडेंट आइसोलेट्स को जब आप काम करते हैं देन यू फाइंड कि क्वाइट इंटरेस्टिंगली वो रीआइसोलेशन ऑफ द सेम थिंग होती है, बिकॉज आपने सेम सैंपल को प्रोसेस किया होता है मल्टीपल प्लेट्स पे, जो आप कहते हैं ना बायोलॉजिकल एंड टेक्निकल रेप्लिकेट्स। तो जब आप उसकी डाइवर्सिटी फिगर आउट करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो इंडिपेंडेंट आइसोलेट्स फ्रॉम द सिंगल एक्सपेरिमेंट या किसी प्रोजेक्ट से आप लेके चल रहे थे, वो इंडिपेंडेंट आइसोलेट्स जो हैं वो सेम
सेम कल्चर के हैं, तो अल्टीमेटली वो सेम कल्चर जो है फिर आप उसको सिंगल कल्चर को पिकअप कर लेते हैं फर्दर डिस्क्रिप्शन के लिए। फिर 10 के 10 को लेके नहीं ना डिस्क्रिप्शन करते, जैसे कल्चरोमिक्स में हम कट शॉर्ट करते हैं अपनी जो हमारी वो होती हैं कोई भी इसके लिए पैरामीटर्स होते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे हम कट शॉर्ट करते हैं अपने आइसोलेट्स को, और आइसोलेट्स में से हम पिकअप करते हैं कि किसको हमने लेके जाके स्पीशीज डिस्क्रिप्शन की तरफ लेके जाना। और स्पीशीज डिस्क्रिप्शन का हमारे पास एक पोर्टफोलियो है कि वी हैव टू गो फॉर 16S राइबोसोमल आरएनए थिंग, वो हमें उसकी सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन दे देता है, एक रिलायबल डेटा polyphasic approach to come up with a concrete result, not a kind of result which is pulling apart, being a systematist. तो पॉलीफेजिक अप्रोच में आपको पता है कि आपके फिनोटिपिक मेथड्स भी आ रहे हैं, आपके जीनोटिपिक मेथड्स भी आ रहे हैं, आपके कल्चर बेस्ड मेथड्स भी आ रहे हैं, माल्टीटॉफ भी आ रही है, ये सारी चीजें, ठीक है। और डिपेंड जीनोटिपिक में कि अगर 16S नहीं लग रहा था तो आपने किसी और जीनोटिपिक मेथड पे जाना है, MLS से पे, या और कोई जो भी DNA के मेथड्स हैं, या 23S पे या ITS पे जाना है, या ANI पे जाना है, वो GC कंटेंट आप करते हैं, ये सारी चीजें आप कर रहे होते हैं। बट अल्टीमेटली वी हैव कम टू द पॉइंट दैट ये जितनी भी हम सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं इन 40 साल में, जो हमारा फोकस रहा था कि हमारी सिस्टमैटिक यानी सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी डेवलप ना हो, सिस्टमैटिक माइक्रोबायोलॉजी डेवलप हो, तो दूसरी तरफ उसका फोकस ये था कि अगर सिस्टमैटिकली आप इतना फोकस करके उसको डेवलप कर रहे हैं, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज टुवर्ड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन यू आल्सो हैव टू पुट अप योर रिसोर्सेज टू कीप these resources intact, to keep these microbial resources intact, and the way to keep these microbial resources is to invest into the future of the culture collections, right? इसी के ऊपर हमने पीछे शुरू की थी अपनी अंडरस्टैंडिंग, और इसी के ऊपर मैंने आपको एक पेपर दिया था पढ़ने के ऊपर, देखने के लिए कि हम इसको जाके उसमें फर्दर करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। किसी ने देखा था इसको? यस मैम। क्या देखा था मैम? उसपे बायोलॉजिकल रिसोर्स सेंटर फॉर एनवायरनमेंट वाला। बायोलॉजिकल रिसोर्स सेंटर कौन सा? मैम स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट के लिहाज से था, और ये वो जो आपने मुझे कहा था भेजने के लिए BR। अच्छा, लाइक वो स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट के लिहाज से था, एंड एज आई हैव सेड के things are so much expanded that it is not possible that we can even learn each and everything about these biological resources. If I tell you my point of view and what I am working on, that I am going to develop the course on the business side of the microbial culture collections right now, because it is very very important that when we are learned enough about the systematics of microbiology, then we should also be able to understand completely the business model, that we are not only that admiring others that they are having the culture collections, and we also can name it, and we also can find those culture collections, but we should also understand the business models, and we should be on the way towards that। ठीक है, जिस तरह से हम माइक्रोबायोलॉजी से सिस्टमैटिक्स पे एंटर हुए हैं, इस तरह से हमें अब सिस्टमैटिक्स के साथ कल्चर कलेक्शंस के मॉडल पे एंटर होना है। तो मेरे कोर्स के अंदर अभी इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं आपको इस पे ज़्यादा लेके जा सकूं, although it is a lot of literature and it is a lot of complication and technicalities, but still I try to keep at least 3 lectures in the course के जिसको हम इसको एक लेवल तक प्राइमरी लेवल पे अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, सो राइट नाउ वी आर ऑन द वे, एंड आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू, जैसे मैंने आपको जब सिस्टमैटिक्स पढ़ानी शुरू की थी, तो आई हैव पॉइंटेड आउट सम ऑफ द projects, major projects which have contributed towards systematics, microbial systematics development। कोई 2-3 प्रोजेक्ट या एक प्रोजेक्ट कोई नाम याद है जिसको मैंने पॉइंट आउट किया था? जीवा।
हाँ, और गीबा जीनोम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्किया। यस, माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट। हाँ, ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट, वेरी गुड। और मैम एक और था जो कि एक्वाटिक लाइफ के ऊपर आई थिंक फोकस कर रहा था। 1000 जीनोम प्रोजेक्ट था, और चाइनीज का जो मरीन उसके ऊपर था, मेरा ख्याल है 1000 जीनोम प्रोजेक्ट चाइनीज के प्रोजेक्ट का नाम है, जो कि मेरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर था। ठीक है, इसी तरह से जब हम कल्चर कलेक्शंस पे आते हैं तो मैंने 2-3-4 नाम आपको बता दिए, बट लेट मी टेल यू, स्काई इज द लिमिट वेयर यू आर टुडे। ये जो मैंने ATCC का नाम ले लिया या DSMZ का नाम ले लिया, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इंडिविजुअल कल्चर कलेक्शंस थी। इवन वी हैव क्रॉस द लिमिट ऑफ द कंसोर्शियम कल्चर कलेक्शंस। ठीक है, वो कंसोर्शियम कल्चर कलेक्शंस के प्रोजेक्ट ना सिर्फ शुरू हुए बल्कि वो कंप्लीट होके अब तो वो अपनी एडवांस स्टेज पे एंटर हो चुके हैं। जैसे मैंने मिरी का नाम लिया था, जो मेरी यूरोपियन कंसोर्शियम प्रोजेक्ट था, इसी तरह से अमेरिकन कंसोर्शियम प्रोजेक्ट था जिसको टेकअप किया था कैबी ने, या इस तरह से कुछ। अभी एशिया में ये वाला फोकस कम है क्योंकि एशिया में उस तरह के कंसोर्शियम डेवलपमेंट के अभी इतने वो साइंटिफिक डेवलपमेंट है नहीं। मोस्टली लीडिंग पार्ट हमारा यहाँ पे जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी में जापान है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में चाइना है, एंड द वेरी गुड फॉलोअर इज इंडिया इंडीड। ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सारे के सारे उसको वो आपको वो करूं, बट आई जस्ट गिव यू अ हिंट that whenever you get interest into it, or whenever you need to look into it, then you will be able to look into the microbial resources and their infrastructures, and you will be able to find out not only the required information but also the required microorganisms. And if you come up to the point where you are with a novel microorganism or with a key strain even, then you will be knowing that how you have to proceed towards the culture collections. ठीक है, एक तो ये कि acquire करना अपनी study के लिए where you are requiring the reference strains, and then if you come up with something novel, then taking it to the place where you can deposit it. ठीक है, तो उसमें एक मैंने ये प्लान आपको निकाल के दे दिया था, ये जो N4 का था कि ये एनवायरमेंटल है और सॉइल के रेफरेंस से था, और एक रीसेंट पेपर में इन्होंने जमा किया था। इसी तरह से अगर आप खोलेंगे तो मेरी का जो पैन यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोजेक्ट था उसका कंटेंट भी ऑनलाइन पड़ा हुआ है। उसके अलावा OECD के बारे में किसी को पता है कि OECD क्या है? कभी नाम सुना है OECD का? नो मैम। यस It is Organization for नहीं। Economic and Cooperation Development, OECD. ठीक है, Organization for Economic Cooperation and Development. Economic Cooperation, Economic कॉपरेशन के अंदर जनरली हम सोचते हैं अच्छा पता नहीं एग्रीकल्चर हो, कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर हो रही है तो वो इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी में उसकी कंट्रीब्यूशन है, या कहीं पे मैरीन लाइफ है तो वो उसे सेल कर रहे हैं, या आपकी हमारी जो है वो ये कैसे कहते हैं लाइफ स्टॉक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारी इकोनॉमी में, या जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं उनकी इंडस्ट्रियल उसकी इम्पोर्टेंस है। बट ये सारी की सारी ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसके अंदर बहुत बड़ा जो शेयर है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो लाइफ स्टॉक का है, चाहे वो हेल्थ का है, उसमें बहुत बड़ा शेयर जो है वो कहाँ से आ रहा है? माइक्रोबियल रिसोर्सेज से। ठीक है, so microbial resources are not only part of the research but they have been recognized as essential component for the not only for the advancement of life and life sciences but also essential component of the economy. ठीक है, तो ये जितने भी अब बायोलॉजिकल रिसोर्स सेंटर डेवलप होते हैं या इनके कॉन्सेप्ट जो डेवलप होते हैं वो थ्रू द OECD होते हैं। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है वो इसके लिए गाइडलाइन पब्लिश कर चुकी है। जो आप रिसोर्स सेंटर डेवलप करते हैं 2007 की गाइडलाइंस हैं पहली जो इसके ऊपर अवेलेबल हैं। जब आप कल्चर कलेक्शन या रिसोर्स सेंटर बनाने चाहते हैं, चाहे वो मेरी का है, चाहे वो एसफ्री है, चाहे वो कैबी का है, चाहे वो GBRC का है, या जितने भी बड़े बड़े मुझे नाम याद आ सके, ये सारे के सारे हैं। ये आप गाइडलाइन कहाँ से ले रहे हैं? OECD के डॉक्यूमेंट से ले रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें वहां से डॉक्यूमेंट मिलता है। उसके अलावा मैंने आपको एक डेटा सेंटर बताया था जो आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है। किसी ने उसको खोल के देखा था कि वो क्या चीज थी? जिसमें मैंने कहा था कि 660 या कितनी कल्चर कलेक्शंस जो थी वो बाय 2019 एंड आई गेस
उसके अंदर पब्लिश थी 660 के करीब, और अब हम देख सकते हैं कि कितनी है। कौन सा था वो डेटा सेंटर? वर्ल्ड WDCM मैडम। यस, WDCM। ठहरो, मुझे इतना इजी नहीं रहता व्हाइट बोर्ड पे, अदर आई प्रेफर कि मैं व्हाइट बोर्ड खोल लिया करूं इंस्टेड कि आपको एक वो लगा दें, एक पेपर लगा दूं या प्रेजेंटेशन लगा दूं और जो आप झूमते झूमते उसको सुने और फिर चले जाएं, बिकॉज आई रियली डू नॉट एंजॉय वेयर आई स्टार्ट रीडिंग थ्रू अ पेपर। फिर तो बड़ा आसान है कि बस आपको पेपर भेज दिया करूं, आप पढ़ लिया करें और कहानी खत्म हो जाया करे। पार्टिसिपेट नहीं करते हैं आप लोग। पिछली क्लास में जो मेरी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन रही थी पूरे क्लास के दौरान, और इसलिए फिर आज जो है वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ डॉक्यूमेंट। आई वांट यू to stay active and participate on the basis of your memory, and then I can share the document with you, and then you can read it yourself. WDCM था। WDCM को किसी ने खोला था? नहीं खोला तो कोई बात नहीं, अभी खोल लेते हैं। हाँ, चेक तो कर लेते, मैंने सही बताया भी है कि नहीं, कुछ है भी ऐसी चीज या नहीं खुद ही जोड़ दी है। एज वी आर ग्रोइंग। हाँ, ठीक था वो। मैंने आपको बताया था कि उसकी आउटलुक इतनी चेंज होती है कि यू सी, अगर मैं जैसे ये सिस्टमैटिक्स का कोर्स कोई ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है WDCM को हर रोज़ खोलने की फ़िलहाल, तो अगर मैं एक सेमेस्टर में पढ़ाती हूँ और फिर मैं रोटेशन पे इसको जब लेती हूँ, तो अगली दफ़ा मैं आती हूँ तो उसकी आउटलुक इतनी चेंज हुई होती है कि WDCM की वेबसाइट मेरे अपने लिए नई हो जाती है। ठीक है, तो बट you should know what kind of information it is providing us, and you should know that if you are requiring the database information about the culture collections, and then each culture collection is also required to maintain its catalog. Earlier जो है वो ये रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो उसको इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग भी रखेंगे। अभी वी आर एट ए पॉइंट वेयर इट इज़ गेटिंग मैंडेटरी कि वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग भी रखेंगे। पहले ये होता था कि कल्चर कलेक्शन बस ये कहती है कि हमारी कैटलॉग है। अब वो कैटलॉग अगर मेरी दराज में पड़ी है और इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो किसी दूसरे शहर में बैठा हुआ बंदा भी को वो कैटलॉग नहीं देख सकता। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज की बात तो दूसरी रही। तो जो बड़ी बड़ी कल्चर कलेक्शन है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, बिकॉज दीज आर द ट्रू बिजनेस मॉडल। बट इफ वी आर टॉक अबाउट इट दैट येस वी डू हैव अ कल्चर कलेक्शन बाय नेम, बट इट इज नॉट ए काइंड ऑफ लिविंग थिंग जो कि प्रैक्टिसिंग भी है, तो फिर तो यही होगा कि हाँ हमारी कैटलॉग है लेकिन वो मेरे दराज में पड़ी है, या वो मेरे कंप्यूटर में थी, उस कंप्यूटर में थी जिसका डेटा पिछले साल उड़ गया था। ठीक है, तो इट्स नॉट ए sort of thing, but yes, in WDCM it is not so that you are having all culture collections which are having reliable resources. It is the you can say list of the registered culture collections. It could be that some are at a grade 1 advanced level, तो नहीं मैं उसे कहूँगी grade 1 कि yes बहुत अच्छी वर्किंग है, कुछ जो है वो उतनी अच्छी वर्किंग नहीं है, और बहुत अच्छी वर्किंग में यूरोपियन भी है, कुछ यूरोपियन भी जो है वो मिडल या बिलो स्टैंडर्ड वर्किंग में है, और जिस तरह एशियन में भी कुछ जो है वो बहुत अच्छी वर्किंग में है और कुछ सिर्फ नाम की ही है, नाम से आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये बहुत ऑथेंटिक जैसे जैन बैंक का था कि अर्लियर अभी फोकस क्या था कि सब अपने सीक्वेंस जमा कराते चले जाओ, फिर क्या फोकस हो गया था कि अब इसको रिफाइन करना शुरू कर दें। ठीक है, ये जो कल्चर कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज 125 years old, but the focus has been presented just 7-8 years ago. 2014 is the time where it has been made mandatory through a kind of consortium। 2014 वाली वर्कशॉप का जो डॉक्यूमेंट मैंने आपसे शेयर किया, तो इन 5-6 साल में ये स्ट्रेस आउट किया गया कि आपने इसको डालना है और बनानी है कल्चर कलेक्शन। तो इसलिए इट इज नॉट सो के WDCM के ऊपर सब कुछ ऑथेंटिक है। इट इज सो दैट यू आर हैविंग द डेटा एटलीस्ट अवेलेबल ओवर देयर, राइट। एंड इफ यू सी कि 650 कल्चर कलेक्शंस जो हैं वो कितनी स्ट्रेन्स को करेंगे, तो ओवर 2 million स्ट्रेन्स बैक्टीरिया और फंजाई की मिला के वो उनकी होल्डिंग्स है। होल्डिंग्स मीन ईच कल्चर इज कॉल्ड ए होल्डिंग, वो उसकी कल्चर कलेक्शन है। बट द थिंग इज दैट swiftly we are entering into the era where we are also recognizing that what are reliable resource centers and what are not yet so reliable resource centers, and the next stage will be that we will be quitting those which are not so reliable और उनको मौका ही नहीं मिलेगा कि वो रजिस्टर कर सकें। ठीक है,
तो जिस तरह से WDCM है, ये डेटा सेंटर है, इससे पहले जब आपने कल्चर कलेक्शन बनानी होती है तो आपको WFCC से, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर कल्चर कलेक्शन से उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन भी चूंकि फॉर फ्री होती है और इमीडिएट हो जाती है, तो स्टिल इट इज़ नॉट वेरी काइंड ऑफ स्ट्रिंजेंट वे कि आप उसको रजिस्टर नहीं कर सकते। स्टिल आप रिसोर्स सेंटर को या कल्चर कलेक्शन को रजिस्टर कर सकते हैं, उसको DCM में एंटर करवा सकते हैं थ्रू WFCC, लेकिन उससे आगे वो उसकी ऑपरेशनल उसके बारे में आपको इतना नॉलेज नहीं आ रहा। ठीक है, ऑपरेशनल उसका नॉलेज आपको कैसे आएगा? मॉनिटरिंग से मैम। किसको मॉनिटर करें हम? मतलब रिसोर्स सेंटर को कि वो कैसा काम कर रहा है। हम कैसे मॉनिटर करें? मैं तो इसका यूजर हो सकती हूँ ना, मुझे किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ती है तो आई विल बी गोइंग टू WDCM, राइट, टू गेट टू नो कि जी कौन कौन सी कल्चर कलेक्शन है। पर्टिकुलरली मैं रीजनल पे फोकस करूंगी, मेरा इंटरेस्ट ये होगा कि मुझे जल्दी आ जाएगी और सस्ती मिलेगी, और वो बहुत ज़्यादा वो जो ट्रेड होती हैं आपकी इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, वो ईजी रहेगी। ठीक है, तो वो मेरा फोकस ये होगा और मैं उसमें चली जाऊंगी। या उसमें ये हो सकता है कि नेटिव के रेफरेंस से मुझे अच्छा रेफरेंस वहाँ से मिल सकता है, इंस्टेड के मैं यूरोपियन रेफरेंस उठाऊं, मैं रीजनल रेफरेंस उठा लूं, तो इसलिए उसके लिए मैं वहाँ चली गई, इन्फॉर्मेशन मुझे मिलनी शुरू हो गई। लेकिन वो ऑथेंटिक है या नहीं है उसके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? मैं उसको कैसे मॉनिटर करूंगी? एक ईमेल लिखूं, अगर वो मेरी ईमेल का जवाब दे दें तो? मैम जैसे आपने WSCC का बताया, इस तरह की अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो और वो मॉनिटर करे कि कितने मतलब कल्चर्स डिपॉजिट हो रहे हैं और कैसे मेंटेन हो रहे हैं, तो अच्छा, WFCC सोचो मॉनिटर कर रही है, वो मॉनिटर कर रही है, वो उनको मॉनिटर कर रही है, लेकिन वो हर कस्टमर को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। ठीक है, हर कस्टमर WFCC को लिखना शुरू कर दे कि ये वाली ठीक है, ये वाली नहीं ठीक है, या इसमें ये वाला कल्चर ठीक है, ये नहीं ठीक है, तो उसका तो काम और बढ़ जाएगा। फिर अब क्या करें? उससे तो वो एग्री, ऑपरेशनल गाइडलाइन WFCC ने दी और रजिस्टर कर दिया, यानी उन्होंने पहले आपको रजिस्टर किया और गाइडलाइंस दे दी। गाइडलाइंस OECD की भी हैं, बेसिकली वही गाइडलाइंस है जो आपने फॉलो करनी है, तो आपको वो मिल जाती हैं। एक्चुअली मॉडर्न डे कल्चर कलेक्शन जो है वो न्यू डिमांड्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को तो अडॉप्ट करेगी टू 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 रिमेन अलाइव। ठीक है, अपनी अपनी डोमेन में it will be evolving, it will be remaining alive in microbes, in fungi, in algae or in biological resources जो भी है, उसकी best practice guidelines भी available है, उसकी registration भी हुई हुई है, but also that they are working on their resources not only for identification but also on the features of their resources, or they are also working towards new species identification, and then they are publishing their work. When they are publishing their work or they are developing their consortium projects, and then they are publishing the reports of their consortium projects, and through the literature actually we get to know. अभी भी तो हमें ये सारा, जब मैं आपको कोई चीज पढ़ाती हूँ तो वो एक स्टैंडर्ड लिटरेचर के थ्रू पढ़ाती हूँ ना, ये पेपर पब्लिश हुआ है इसके थ्रू करते हैं, फिर जब पेपर्स हो जाते हैं फिर उसके ऊपर किताबें उस पर लिखी जाती हैं और फिर हम किताबों पे आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो जो कल्चर कलेक्शंस हैं, दीज आर नॉट ओनली द बिजनेस मॉडल्स के वो कल्चर्स को मेंटेन कर रही हैं और सेल कर रही हैं, बल्कि उनका एक पार्ट क्या होता है? रिसर्च का पार्ट होता है, जहाँ पे वो न्यू आइडेंटिफिकेशंस के लिए भी काम कर रहे होते हैं, विद फॉर द मेथड्स डेवलपमेंट ऑफ कल्चर कलेक्शन भी काम कर रहे होते हैं, फॉर द रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ कल्चर कलेक्शन भी काम कर रहे होते हैं, ऑन द बिजनेस मॉडल्स ऑफ कल्चर कलेक्शन काम कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग के लिए काम कर रहे होते हैं, वर्कशॉप्स कर रहे होते हैं, और उसको पब्लिश कर रहे होते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, उसके थ्रू मिलता है। अभी जो मैंने पेपर दिया है आपको, उसने इंडिकेट नहीं किया कि ये कल्चर कलेक्शंस हैं जो कि रिलायबल हो सकती हैं, दे आर वर्किंग एंड दे आर दे आर जॉइनिंग हैंड। कंसोर्शियम में कौन जाएगा जिसके पास कुछ होगा हार्ड फॉर्म में? सॉफ्ट फॉर्म के डेटा के ऊपर तो कंसोर्शियम में आप नहीं ना जा सकते। ठीक है, सो इट इज नॉट ओनली कि आप DCM पे जाते हैं, बल्कि आप लिटरेचर भी देखते हैं। आप अपने काम से रेफरेंस से जब वो देखते हैं, कोई भी आप अपने कल्चर्स देखते हैं जो इसमें आप यूज करेंगे, तो आप देखते हैं कि किन रिसोर्सेज और हेलो व्हाट इज दिस हैपनिंग भाई?
So here I will not take you much into the regulatory requirement, but I think I have deliberated enough that how you will be getting the precise information on the cultural collection, not only the information, but withstanding the precise information on the culture collection and the microbial resources which can be used for your work as a reference, or you can go to the right kind of culture collections for your deposition of the cultures, right? So we will not talk about much on their business models के किस तरह वो बनती हैं, उनको पैसा कहाँ से मिलता है और कहाँ से नहीं, but yes, basically 3 तरह की collections हो सकती हैं, तो वो basic level, intermediate level और high level. This is what I will be sharing with you. आपके साथ कोई शेयर हुआ है डॉक्यूमेंट? नो मैम। नो मैम। कोई भी कल्चर कलेक्शन है XYZ, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो चाइना में है, हम उसके लेवल्स की बात कर रहे हैं, लेवल्स इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है? लेवल नॉट इन टर्म्स ऑफ ग्रेड के ये कैटेगरी A है, ये बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, वो मैंने आपको बता दिया कि वो टाइम टू टाइम चेंज होगा. Today if you are putting your resources towards development, you are maintaining, तो वो कैटेगरी में रहेगी. कल ये सस्टेनेबल इस तरह से नहीं है कि इसमें एक दफ़ा रख के आपने छोड़ दिया तो वो वहीं पे मेंटेन रहेगी. इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सस्टेनेबल उस तरह से नहीं है. तो वो आप उसको अगर कंटिन्यूअसली लेके चलेंगे तो वो मेंटेन रहेगी. और जैसे अगर मैं 15 साल पहले कल्चर्स ले रही थी तो एक निफ्टाल के नाम से कल्चर कलेक्शन थी, किस जगह की थी वो निफ्टाल, मुझे कंट्री नहीं याद आ रहा, बट आई यूज्ड टू राइट देम एंड दे वर सेंडिंग मी कल्चर्स, राइट? बट इन टुडेज वर्ल्ड अब निफ्टाल का उतना बड़ा वो सेटअप उस तरह से नहीं रहा है, बिकॉज दे कुड नॉट मेंटेन इट समहाउ, और उनके रिसोर्सेज रिप्लेनिश हो गए, उन्होंने उस पर वर्किंग नहीं की कि अपने रिसोर्सेज को कैसे मेंटेन करते इन कल्चर्स के लिए, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कल्चर्स, ठीक है? तो इसलिए वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, और उसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ WDCM से नहीं लेंगे, बल्कि एट द टाइम हम जो हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल हो रहा होगा उसके थ्रू भी उसको देखेंगे, जो भी हमारा एरिया ऑफ वर्क होगा. मुझे नहीं पता शेयरिंग की ऑप्शन क्यों नहीं हो रही, अभी भी नहीं ना शेयर हुआ आपके साथ. अब देखते हैं. मैम मैम आप इस फील्ड में कितने साल से काम कर रही हैं? बेसिकली जी मेरी जो मास्टर्स की डिग्री है वो बायोकेमिस्ट्री की है, ठीक है? उसके बाद मैंने एमफिल जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में किया है, और उसमें मैंने काम किया था अपने एमफिल में इंस्टेबिलिटी ऑफ जेनेटिक इंस्टेबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर. जेनेटिक इंस्टेबिलिटी इन टर्म्स कि आप, और उसमें आई हैव सीन कपल ऑफ रिपोर्ट्स लाइक जो मैंने ऑस्ट्रेलियन और ATCCB इवन वो अंडर पब्लिश्ड रिपोर्ट्स थी, लेकिन they have claimed कि during preservation and all those things it happens the genetic instability of microorganism. लेकिन चूंकि those were the good culture collections or they had big names, so they were not reporting it at a very high level कि yes हमारी culture collections में भी during preservation instability issues आते हैं. genetic characters loss तो करते हैं bacteria, लेकिन वो उसको एडमिट नहीं करते थे. देवर एडमिटिंग कि हमारे जो प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और इसमें ऐसा नहीं होता, बट अंडर रिपोर्टिंग ये शुरू हो चुकी थी. एंड इन द साइंटिफिक मीटिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स द पीपल हैव स्टार्टेड टू टॉक ऑन इट, द क्यूरेटर्स ऑफ द कल्चर कलेक्शंस. I have just gone through some of the literature pieces, and then instead of working on the characterization of microorganism in my MPhil as it was happening in the research laboratory where I was entering, I looked into if there are certain strains which had certain characters and lost during the period of time. And when I could find such cultures in the group where I was working, so I preferred to work on genetic instability of microorganisms. Ultimately, after that, after MPhil, I have worked for a couple of years as a researcher in this field, and then I left for my PhD. I have chosen to work in viruses, not precisely much into bacteria. So after PhD, right now it's been
11 years in ComScience I'm working in this all these things, जिसमें मैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स पे अपनी जितनी भी पूरी एक्सपर्टीज थी वायरसेस और बैक्टीरिया दोनों को कर रही हूँ। तो मेरी डायमेंशंस जो हैं वो वायरसेस में उनकी आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन भी है और कंट्रोल्स के ऊपर भी है। सिमिलरली बैक्टीरिया में उनकी आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन के बाद उसकी जो है वो कंट्रोल्स के ऊपर भी है, और इनका ब्रिजिंग जो है फेज और बैक्टीरिया का, इसके ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ। तो ये मेरा सारा का सारा एरिया है अप्लाइड और सिस्टमैटिक माइक्रोबायोलॉजी के रेफरेंस से रिसर्च का। ठीक है, बाकी आप जो है वो मेरी प्रोफाइल में भी देख सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स की मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह उसमें डाली हुई है। ओके मैम। अभी भी शेयर नहीं हुआ आपसे, ये क्यों शेयर नो नहीं मैम। हो रहा? आई डोंट नो, एक दफा फिर करके देखते हैं। विंडोज में जाएंगे और विंडो में जाके ऑप्शन ही नहीं आ रही। मैम अभी शेयर होगी। अभी आपके साथ ये टेबल शेयर हो रहा है कलेक्शन डेवलपमेंट का? यस मैम। यस मैम। ठीक है। So it is clear that when I'm talking about the levels of collection, तो level of collection वो नहीं है कि वो किस ग्रेडिंग की है, और वो सारा चीजें आप खुद देखेंगे जब आपको उस कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसमें कितने हैं अब जरूरी नहीं है कि हर एक के इंटरेस्ट में सारे हों। वो हम एनवायरनमेंट वाले पेपर पे जब जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि कलेक्शंस जो है वो उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, रीजनल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट या लैब इंटरेस्ट भी हो सकते हैं जिसपे वो कलेक्शन बेस कर रही है, और आपको अपने मकसद अपने रेलेवेंस के स्ट्रेन के लिए वहां पे जाना पड़ता है। तो बेसिकली द लेवल ऑफ द कलेक्शन इज ऑन द टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंट। ऑन द टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट दे आर ऑफ 3 लेवल्स, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड हाई लेवल। बेसिक लेवल की कलेक्शन कौन सी होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस कलेक्शन के? that they are using the basic methods for biological material preservation। ठीक है, बेसिक मेथड जो है वो मैंने बेसिकली आपको थोड़ा सा एक हिंट एक पावर पॉइंट स्लाइड में दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि वो नाइट्रोजन के थ्रू प्रिजर्व कर रहे हैं, क्रायो से कर रहे हैं, या ग्लिसरॉल में कर रहे हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 से 3 बेसिक मेथड प्रिजर्वेशन के वहां पे इन प्लेस होते हैं। ठीक है, वन थिंग कि वो बेसिक मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन यूज कर रहे होते हैं, द अदर थिंग इज that they are doing the proper documentation also, no matter it is at the basic level। अभी वो हाथ से रजिस्टर में लिख रहे हैं या कंप्यूटर में एक्सेल की शीट में बना रहे हैं, लेकिन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन कोई भी कल्चर कलेक्शन नहीं चलती, चाहे वो बेसिक लेवल की हो। ठीक है, then comes the intermediate level, and depending upon the resources, you know, in terms that every collection starts at the basic level, but we know that the bigger collections or the bigger projects, they are like for a day at a basic level and then they are at the intermediate level। जो बहुत बड़ी बड़ी collections हैं जिनके हमने नाम लिए, जो कंसोर्शियम में एंटर हुई और कंसोर्शियम भी खत्म कर चुकी हैं, जैसे मेरी या कैबी या बायोलॉजिकल रिसोर्स सेंटर जो मैंने BRN का आपसे नाम लिया, ये वो हैं जो तो हाई लेवल से भी ऊपर चली गई हैं। रिसोर्स सेंटर, हम कंप्लीट रिसोर्स सेंटर की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली ऑफ द कल्चर कलेक्शन राइट नाउ, चाहे वो माइक्रोब की है या कंप्लीट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की है, जिस भी टर्म्स पे है। बट इंटरमीडिएट लेवल जो है, यू सी, इसकी विंडो बहुत बढ़ जाती है। जी कोई कुछ कह रहा है? मगान आप कुछ कह रहे हैं?
नहीं मैम। हेलो, अच्छा। सो इंटरमीडिएट लेवल जो है इमीडिएटली बहुत उसका होराइजन बढ़ जाता है। इट इज नॉट ओनली जो पिछली चीजें थी वो तो रहेंगी, जो बेसिक मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन थे, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन थी, वो तो वहाँ है ही है, उसने आगे बढ़ना है। बट व्हाट नेक्स्ट हैपेंस दैट दे आर हैविंग साउंड फैसिलिटीज। साउंड फैसिलिटीज मीन किस चीज की फैसिलिटी? मेंटेनेंस की। यस मैम। प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस तो पहले भी थी, प्रिजर्वेशन बट इट इज आल्सो इंक्लूडिंग द वेरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, देखें अगर आपके पास मेंटेनेंस नहीं थी, प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस नहीं थी, मेरी उस पावर पॉइंट को याद रखो जो मेंटेनेंस के नाम से मैंने सिखाई थी, और जो पहला है वो वही प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस है, वो तो रहेगी। लेकिन साउंड फैसिलिटीज ऑफ वेरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, अब चाहे वो कोई टेस्ट पहले बाहर से करा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि वो अपने टेस्ट बाहर से कराएंगे, बल्कि वो इन हाउस फैसिलिटीज डेवलप करेंगे, क्योंकि वो रिलायबल होगी जो इन हाउस उनके टेस्टिंग होगी। इंस्टेड कि कल्चर कलेक्शन भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज के पास जाए अपनी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, जैसे आपकी हेल्थ फैसिलिटीज में होता है कि बेसिक लेबोरेटरी होती है, वो क्या करती है कि टेस्ट किसी दूसरी जगह से करा रही होती है, ये बेसिक उसका, फिर जब वो एडवांस थोड़ी सी अपने लेवल पे जाती है तो वो इन हाउस टेस्टिंग डेवलप कर लेती है। ठीक है, इसी तरह से वो अपनी साउंड फैसिलिटीज डेवलप कर लेती हैं। साउंड फैसिलिटीज डेवलप करने के साथ ऑटोमेटिकली उनकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो जाते हैं, बिकॉज उनके पास सारी की सारी फैसिलिटी को रन करने के लिए टेक्निकल रिसोर्सेज हो जाते हैं। ठीक है, गुड टेक्नोलॉजीज इन प्लेस होती हैं, चाहे वो डेटाबेस टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो रनिंग टेक्नोलॉजीज हैं। प्लस बेसिकली पहले चाहे वो अपने रजिस्टर पे लिख रहे थे या रजिस्टर से डेटा उठा के अपने एक्सेल में डाल रहे थे, जब वो इंटरमीडिएट लेवल पे एंटर होती है कलेक्शन, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग की तरफ चली जाती है। ठीक है, हम ऑनलाइन कैटलॉगिंग की बात नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग हो गई है, आपकी डेटा मैनेज होना शुरू हो गया आपका। वहां पे जब आपसे कोई मांगता है तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग भेज भी देते हैं, या आप उसको इन्फॉर्मेशन अपनी इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग से देते हैं, बट रिलेटिवली थिंग्स आर गेटिंग straight at the intermediate level of the collection. Then the intermediate level of collections, they operate to international criteria, not in terms that they are operating internationally, that they are sharing their resources internationally. It could be that they are sharing the resources internationally, it could be that they are accepting the resources from the national circle. क्योंकि देखें, अगर मैंने अपनी एक कलेक्शन बनाई है, इमीडिएटली मुझे इंडिया से कोई कल्चर आने शुरू होते हैं, मैंने अभी इतना अपना लेवल नहीं बढ़ाया कि मैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को उस तरह से पिकअप कर सकूं कि मैं उसकी जो आ रहे हैं रिसोर्सेज वो पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, या बेसिकली नॉन पैथोजेनिक में भी अगर आप काम कर रहे हैं रिलायबल नॉन रिलायबल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो ये जरूरी नहीं है कि आप इंटरनेशनल टर्म्स पे काम कर रहे हैं कि आपने सबके साथ बिजनेस करना है, सबके एक्सेप्ट करने हैं या सबको प्रोवाइड करने हैं, बट यू आर ऑपरेटिंग एट इंटरनेशनल क्राइटेरिया। ये इंटरनेशनल क्राइटेरिया कहाँ से आएगा? OECD का होगा मैम। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेल डन। दिस इंटरनेशनल क्राइटेरिया इज कि जो आपकी गाइडलाइन सेट हो रही है आप उसको अडॉप्ट कर चुके हैं। ठीक है, so this is operating to international criteria. Then you are also improving, not improving, you are expanding your stakeholdership. Like for example, if I have initiated at a basic level with the microorganisms which are beneficial microorganism, even in terms of plants, I am interested in microorganisms which are having the biocontrol or siderophore production, but I'm not interested in the pathogenic microorganism. I say that basic level मेरी जो facility है, it is not having good infrastructure कि मैं pathogenic microorganism को संभाल सकूं, because उनको सिर्फ आपने लाना और कल्चर नहीं ना करना, फिर आपने उसकी सारी की सारी बायोसेफ्टी एंड बायोसिक्योरिटी वो भी मेंटेन करनी है। ये एक अलग इशू है, इसके ऊपर अलग कोर्स भी है हमारे डिपार्टमेंट में चल रहा है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगी, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ अंदाजा है बायोसेफ्टी बायोसिक्योरिटी का, बट दिस इज ऑल्सो इन प्लेस एट द कल्चर कलेक्शन। ठीक है, तो वो पहले हमने उससे शुरू किया था, लेकिन अब ये थोड़ी है कि हमेशा उसी पे रहेंगे। अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं या हम प्लांट की कुछ फैमिलीज की बात कर रहे हैं, तो फिर हम उनके पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को भी एंटर कर लेंगे अपनी कैपेसिटी के अंदर कि हम उसके ऊपर भी करते हैं। फिर इसी तरह से हम इंडस्ट्री को या सॉइल को या दूसरे फैक्टर्स को, यानी अपनी स्टेक होल्डरशिप बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, सो इंटरमीडिएट लेवल की जो कलेक्शन होती है उसकी स्टेक होल्डरशिप एक्चुअली वाइड हो जाती है। अब ऐसा नहीं है
कि अगर प्लांट्स की रेफरेंस से मेरी कल्चर कलेक्शन काम कर रही है तो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए मेरे पास आओ और पैथोजेनिक के लिए एटीसीसी के पास चले जाओ, ऐसे हो नहीं सकता। ठीक है, तो वो जैसे आप अपना बिजनेस मॉडल, नॉर्मल बिजनेस मॉडल होता है, इसी तरह से आप अपना बिजनेस मॉडल एक्सपैंड करते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे आप अपनी स्टेक होल्डरशिप बढ़ाते हैं और आप समझते हैं कि आप अगर किसी भी चीज को अगर केटर कर रहे हैं तो आप उसकी वाइड रेंज को केटर करें इंस्टेड कि आप उसकी स्पेसिफिसिटी को केटर करते रह जाएं। एंड देन यू स्टार्ट इन्वॉल्विंग इन द रीजनल एंड national networking, not in terms of the sharing of culture always, but in terms कि आप जो आपकी रीजनल या नेशनल डायलॉग्स हो रहे हैं उसमें एंटर होना शुरू हो जाएं। फिर आप उसकी वर्कशॉप्स या कॉन्फ्रेंसेस उसके अंदर अपनी प्रेजेंस शो करना शुरू कर देते हैं, इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज द इंटरमीडिएट लेवल, राइट? एंड देन कम्स द हाई लेवल, और वो हाई लेवल जो है वही उसका एक्चुअली यू कैन से कल्चर कलेक्शन का हाईएस्ट लेवल है। अभी हम कल्चर कलेक्शन की टर्म के ऊपर हैं, किसी भी चीज के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे जब आप बेसिक पे थे तो जाके पहले ही दिन बेसिक लेवल के ऊपर मैंने प्लांट के भी रख लिए, एनिमल के भी रख लिए, तो मेरे लिए मुश्किल हो सकता था। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया कि हमने उसको टर्म ऑफ कल्चर कलेक्शन ले लिया, या आप बीआरसी भी ले लें, लेकिन बीआरसी में पहले दिन जो हमने शुरू किया वो क्या था, कल्चर माइक्रोबियल का शुरू किया। फर्स्ट करो माइक्रोबियल में भी नॉन पैथोजेनिक शुरू किया। इंटरमीडिएट में जब हम गए तो हमने उसको पैथोजेनिक भी इंक्लूड कर लिया, और फिर हमने उसके साथ दूसरी डोमेन्स भी इंक्लूड करनी शुरू कर दी। और अल्टीमेट लेवल किसी भी कल्चर कलेक्शन का क्या होगा, अल्टीमेट लेवल होगा बायोलॉजिकल रिसोर्स सेंटर। बट स्टिल इट इज नॉट मैंडेटरी कि जब आप बायोलॉजिकल रिसोर्स सेंटर का वर्ड लगा दें तो उसमें आपने सारे के सारे यानी ह्यूमन सेल लाइंस भी रखनी है, वो भी डिपेंड करता है, आप अपनी मेंटेन कर सकते हैं डोमेन वहाँ पे, बट स्टिल हम कल्चर कलेक्शन के हाई लेवल की बात करेंगे। ठीक है, हाई लेवल्स ऑफ द कल्चर कलेक्शन उन्हीं की इम्प्रूवमेंट है जो आपने आगे पढ़ लिया, और इसकी आगे यू कैन से अवेलेबिलिटी है at its best, availability of the resources. It is sustainable human resource training in relevance to BRC domains, कि आप अब ऐसा नहीं है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, यू आर प्रैक्टिसिंग इट, बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग में एंटर हो गए हैं, वर्कशॉप्स के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू और हैंड्स ऑन के थ्रू, और यहाँ से आप क्या करते हैं, अपनी मनी भी थोड़ी सी जनरेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हाई लेवल पे जा रहे हैं जी, ज्यादा सारे बंदे भी रख लिए, ज्यादा सारी टेक्निक्स भी रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर पैसे भी तो चाहिए ना हाई लेवल पे एंटर होने के लिए, तो आप अपना बिजनेस भी बढ़ाना शुरू करते हैं। तो बिजनेस बढ़ाने का एक तरीका ये होता है कि आप ट्रेनिंग ऑफर करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड इनफ टू ऑफर इट। ठीक है, सो यू आर हैविंग सस्टेनेबल ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग इन रेलेवेंस टू बीआरसी डोमेन्स, ना सिर्फ अपने लोगों को ट्रेन करा रहे हैं नेक्स्ट एडवांस लेवल पे, बल्कि दूसरों की ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं। You are having collection quality management in place, you are having intellectual property rights regulation, जितने भी आपके मटेरियल ट्रांसफर होते हैं वो मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट्स के थ्रू होते हैं, जितने भी बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, जिस भी कल्चर के लिए जो स्टैंडर्ड अप्लाई होता है वो आपको पता होता है और इन प्लेस होता है। देन जितने भी आपके ऑपरेशनल सिस्टम होते हैं दे आर एक्रीडिएटेड एंड सर्टिफाइड, ये ISO सर्टिफिकेशन का आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट कल्चर कलेक्शंस होती हैं ये भी ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर होती हैं, मतलब आपके जो फ्रिज हैं, फ्रीजर हैं, ड्रॉर्स हैं, उसमें जहाँ पे भी जो पड़ा होता है वो लेबल्ड पड़ा होता है, उसकी की पूरी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड होती है और आपकी इक्विवेलेंस आनी शुरू हो जाती है। लाइक आपकी जब हाई लेवल कल्चर कलेक्शन है तो आप देखेंगे जब आप पेपर में जाते हैं तो वो हाई लेवल कल्चर कलेक्शन में होता है। तो हर कल्चर के लिए जो हम नॉवल स्पीशीज डिस्क्रिप्शन में पढ़े थे या जो हम कल्चर डेपोजिशन की बात कर रहे हैं, एवरी कल्चर इज हैविंग 2 numbers which are equivalent of the culture collections where it has been deposited. I mean, I use the term culture collection or the resource center, but you are very much clear about कि culture collection हम इसलिए use करें क्योंकि हम microbial culture के ऊपर ज़्यादातर हैं, ठीक है? But still जो इसके level entry है, level entry is that you call it microbial BRC, ठीक है? पुरानी टर्म जो थी वो ज्यादा ये थी कि कल्चर कलेक्शन हम यूज करते थे, जो रीसेंट बट स्टिल अभी भी एटीसीसी है, वो बीआरसी नहीं है, वो अपने नाम के साथ है। इसी तरह DSMZ अपने नाम के साथ है, बीआरसी पे नहीं है, उसका प्रोजेक्ट बीआरसी के लेवल पे एंटर जरूर हुआ है लेकिन वो सीसी के नाम से ही है। तो इसलिए वो ये टर्मिनोलॉजीज एज सच उसके ऊपर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट इक्विवेलेंस
आपके कल्चर्स की है, यानी आपका जो स्ट्रेन है जो आपकी कैटलॉग में है वो किसी दूसरी कैटलॉग में उसके नंबर के साथ होगा और दोनों स्ट्रेन इक्विवेलेंट होगी, चाहे कोई वहां से उसको ले चाहे कोई आपसे ले, लेकिन प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंट नहीं कर सकती, ठीक है। सो ये इक्विवेलेंस क्राइटेरिया भी आपका हो जाता है उसके लेवल के ऊपर, ठीक है। देन यू आर हैविंग क्लीन मैनेजमेंट प्रोग्राम and collector strategy in place, like you are very much clear that what you are going to collect and what you are going to deny to collect. आपकी क्योंकि स्टैंडिंग हो चुकी होती है, यहाँ पे जाके आपके ये प्रॉब्लम नहीं होता कि आपने हर किस्म की चीज को पिक करना है। एंड एज आई हैव स्टेटेड विद द ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग, तो आप अपनी सस्टेनेबल फंड रेजिंग मैकेनिज्म पे चले जाते हैं। आई यूज द वर्ड सस्टेनेबल, बट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई हैव टोल्ड यू दैट टिल टुडे I am very closely reading the business models of the culture collections. I do not see like to some very exclusive models. We just do not talk about it right now, but right now it is still with a lot of government support as the public sector other institutes operate, that you enter into the sustainable funding program through the government support. It could be that you are offering some kind of research infrastructures for other organizations. It is that you are providing training for other organization. It is you are providing some other kind of resources to other organization, and somehow you are generating your own funds, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ आप उसमें एंटर हो जाते हैं। ये जो पब्लिक सेक्टर डोमेन थी उसी की बात कर रहे हैं, बट मैंने आपको बताया कि कुछ एक्सक्लूसिव मॉडल जो है वो इमर्ज हो चुके हैं जो कि प्राइवेट उसके ऊपर हैं और वो वाकई सस्टेनेबल हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब आप पब्लिक मॉडल के ऊपर जाते हैं, हमारा जो वास्ता रहेगा जब हम तक एकेडेमिया में हैं, आप या हम लोग, तो हम पब्लिक मॉडल के ऊपर ही जाएंगे क्योंकि वो रिलेटिवली चीप होंगे। लेकिन जो बिजनेस इंडस्ट्री है उनको क्विक चाहिए या हर चीज की एक्सेस चाहिए, तो वो प्राइवेट के ऊपर भी जाएंगे, चाहे वो उनको 10-20 गुना महंगा भी वहां से कल्चर मिले, लेकिन वो उसको लेंगे, ठीक है। तो हम जो है वो हमारी डेवलपमेंट और पिकिंग जो है वो ज्यादातर अभी हम चूंकि बिजनेस मॉडल पे नहीं है। हाँ, जब हम बिजनेस मॉडल स्टडी करेंगे और इस पे चले जाते हैं, जैसे हम बायोलॉजिकल साइंसेस को भी अप ले जाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, और जो कि अब हमारे भी इन प्लेस है। आपको पता है बिजनेस इंक्यूबेशन आपके डिपार्टमेंट आपके इंस्टीट्यूट में भी है, और वो सारी की सारी हम भी उस लेवल पे एंटर हो रहे हैं। ऐसा डेवलप नहीं है अनफॉर्चुनेटली अब तक, तो वहां पे जाके फिर ये हो सकता है कि आप इसको कहें कि ये विदाउट गवर्नमेंट पार्टनरशिप है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी गवर्नमेंट लेवल की सपोर्ट तक ही उसको रहेगी, ठीक है। then it is not so that you keep the resources and you just wait for the people to come to you. You start public awareness, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी जो रिसर्च है, जो आपकी डेवलपमेंट है, उसका थर्ड पार्ट पर पब्लिक अवेयरनेस ऑलवेज इट इज एट्रीब्यूटेड टू इट। जब भी आप रिसर्च करेंगे तो चूंकि आप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक कर रहे हैं, तो फिर आपको पब्लिक अवेयरनेस करनी पड़ेगी, नॉट ओनली टुवर्ड्स योर वर्क बट ऑल्सो टुवर्ड्स their understanding that what are the microbial resources and how important it is to preserve them, because your money which is coming to the government, it is coming through the public money, ठीक है, पब्लिक ऑफिस से ही आपको आ रही होती है। तो अगर आप पब्लिक को प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो फिर अगर आपका ऐसा शिफ्ट आता है जहाँ पे आपकी एक रूलिंग पार्टी चेंज होती है और उसका माइंडसेट उसकी पब्लिक का जो उसको सपोर्ट करके लाती है दूसरा होता है, तो ऑल ऑफ अ सडन आपकी डिमोलिश हो जाएगी। जो कि आपने को मैंने बताया कि कुछ कल्चर कलेक्शन पहले होती हैं, वो पीछे चले जाती हैं क्योंकि उन्होंने उन सारे पैरामीटर्स पे काम नहीं किया होता जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वन वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज दैट यू हैव टू वर्क इनटू द पब्लिक अवेयरनेस डेवलपमेंट। Then all those things which were available at the middle level also, के regulation, monitoring और adjustment of the collection need, वो सारी की सारी in place होगी। And then you will be not only contributing into the regional and national activities, but you will be leading the activities at the regional and national level, and also you will be entering into the international networking, right? So not very difficult to differentiate that how basic, intermediate and high level culture collections are operate and how you can distinguish कि कौन सी किसके ऊपर है, ठीक है। लास्ट स्टेज जो है वो आपकी BRC की है। BRC is, as the name indicates, not only the culture collection, the biological resource center. And if you put a small m over here, this is microbial. If you put f over here, fungal. If you keep it BRC, it is biological resource center. नीचे इसकी definition में डाल दें
कि कौन कौन से बायोलॉजिकल रिसोर्स को ये केटर कर रही है. बट the ultimate level of the culture collection right now, it is a high quality standard collection, accredited है, OEC स्टैंडर्ड पे सर्टिफाइड है, और उसकी फंक्शनिंग जो है वो OECD इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हो रही है कम्प्लीटली. इसमें कोई भी क्वेश्चनिंग कहीं पे भी नहीं है. वैसे तो ये क्वेश्चनिंग पीछे भी नहीं थी, यहाँ से भी शुरू से भी नहीं थी, बट स्टिल वी सी कि लॉट ऑफ हैपनिंग इज देयर एट बेसिक एंड इंटरमीडिएट लेवल. तो वो कुछ तो हैं वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक है, उनका कुछ भी नहीं है प्रैक्टिकल स्टेक. लेकिन कुछ जो है वो बनने के बाद बहुत अरसे तक बेसिक लेवल पे जाती हैं. दे डू नॉट कम टू द पॉइंट वेयर दे कैन वर्क ऑन टू इंटरमीडिएट लेवल पे आने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और यहाँ तक आने के लिए तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड थिंग्स आर इन्वॉल्व. ठीक है, we are not looking to the cost and other thing. As I say that if I start talking about the business model of the culture collections, it will be too very much for you people to digest in this course. So we just keep ourselves to our understanding that we are actually in the era of investment of the resource centers of microorganisms, as we are growing with the systematics of microorganisms, with the development of the molecular methods or other databases and other technologies and tools for understanding the microbe. But on the other side, we are also on the side of preserving the resources, preserving in terms that we keep them intact for use whenever we are requiring it. So now we come to this thing which is probably quite easy for us to understand in a particular domain right now. किसने इसको पढ़ा है? मैम एक क्वेश्चन है मेरा कि BSc का हमारे पास सेपरेट लेवल है या हम इसको हाईएस्ट लेवल में ही रखते हैं? देखिए जी, ये BRC हमारे पास ऐसा लेवल नहीं हम उसे कहेंगे, लेकिन पहले दिन कोई भी कल्चर कलेक्शन अपने आप को एज BRC एस्टेब्लिश नहीं करती. ठीक है, अब मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे काम करना चाह रही हूँ और मैं पहले दिन ही उसका नाम रख दूँ पाकिस्तान बायोलॉजिकल रिसोर्स सेंटर. तो जो उसके नीचे उसका पूरा डॉक्यूमेंट होगा वो बताएगा कि पहले साल में इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे लेस से काम शुरू कर रहे हैं और सिर्फ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हैं. दूसरे साल में हम इस पे, मतलब 5 साल का डॉक्यूमेंट है ना, गवर्नमेंट को मैं जमा करा रही हूँ, तो दूसरे साल में मैं इसके पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ एंटर हो जाऊंगी प्लांट के. तीसरे साल में मैं ह्यूमन पैथोजेनिक माइक्रो, और चौथे 5वें साल में हम क्या करेंगे कि हम या तो फंगल और एल्गी की उसमें एंटर हो जाएंगे, या हम क्या करेंगे अपनी लिंकिंग बना लेंगे. क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बिजनेस मॉडल उतना खोल के पढ़ा ही नहीं रही हूँ अभी. उसमें जाके ये जरूरी नहीं होता कि रिसोर्स सेंटर खुद ये सारा काम कर रहा होता है, बल्कि वो क्या करता है, वो जो रीजनल और नेशनल नेटवर्किंग थी ना, तो फंगल कलेक्शन के साथ आपने नेटवर्किंग कर ली, प्राइमरी काम फंगल नेटवर्क ही करेगा, वो अपनी सेकंड कॉपी आपके पास डिपॉजिट कर देगा. इसका मतलब है कि आपकी कैटलॉग में वो भी एंटर हो जाएंगे, और आपकी जो फैसिलिटीज होंगी कुछ आपकी, वो आप उनके साथ शेयर करना शुरू कर देंगे, कुछ उनको टेस्टिंग सर्विसेज या कुछ प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे. तो एक्चुअली ये इस तरह से होता है. ठीक है, ओके मैम. ये रिसोर्स सेंटर है. अब आप उस रिसोर्स सेंटर को अगर M लगा दिया तो माइक्रोबियल बायोलॉजिकल रिसोर्स सेंटर है, दोनों तरह से उसके नाम ठीक है. ठीक है, ये सारी जो डेवलपमेंट है ना RC वाली, ये जब हमने कंसोर्शियम एंटर हुए उसके बाद हुई है. इससे पहले कल्चर कलेक्शंस थी, और कंसोर्शियम 2017 ऑनवर्ड्स दुनिया को नजर आए हैं. दुनिया को नजर आने का ये मतलब होता है कि जब उसकी पब्लिशिंग हो शुरू हो जाती है. मिरी का डॉक्यूमेंट देखेंगे आप, कैबी का देखेंगे, या बायोलॉजिकल BRN का डॉक्यूमेंट देखेंगे, बायोलॉजिकल रिसोर्स नेटवर्क का डॉक्यूमेंट है, तो वो 2017 के करीब पब्लिश होना शुरू हुआ है. बट एज द पीपल हु वर इन्वॉल्व, बेसिकली एकेडमिशियन थे या जो लोग इन्वॉल्व थे, जैसे मिरी के अंदर जो एक मेन लीड पर्सन है, आई वाज इन्वॉल्व फॉर माई लर्निंग विद हिम, द प्रोफेसर स्टाकेब्रांड, to whom I have introduced for 16S thing to you. Carl Wu उसका स्टूडेंट थे, या DSMZ के फॉर्मर डायरेक्टर थे. So I was knowing how Miri is working, या Miri के बेसिक डॉक्यूमेंट जो वो पब्लिश होता था, लेकिन it was not the conclusive document that how it has worked. अब जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, how it has worked and how it has developed, तो वो फिर आपको बताता है कि किस तरह से कल्चर कलेक्शंस रिसोर्स सेंटर पे डेवलप हुई हैं. ये तो बड़ी वो हो गई ना, रिडंडेंसी हो गई
कि फंगल कलेक्शन भी काम कर रही थी और माइक्रोबियल कलेक्शन भी काम कर रही थी और एल्गल भी काम कर रही थी, और अब जो थी फंगल ने कह दिया कि हम भी रिसोर्स सेंटर बनते हैं, उन्होंने माइक्रोब भी शुरू कर दिया, एलजी भी शुरू कर दिया, और माइक्रोब वालियों ने कह दिया हम फंजाई को भी करेंगे, एलजी को भी, ये भी, तो ये तो रिडंडेंसी हो जाएगी। बीआरसी असल में क्या है? बीआरसी नेटवर्किंग, बीआरसी पे मैंने लेवल पढ़ाए हैं, बीआरसी पे मैंने लेवल पढ़ाए हैं? नो मैम। ये नेटवर्किंग है। ये जो आखिरी पार्ट था ना हाई लेवल का, एक्चुअली इस पार्ट के ऊपर आप ऑटोमेटिकली बीआरसी में एंटर हो गए हैं नेटवर्किंग के थ्रू, ठीक है? यस मैम, समझ आ गई। वरना वो रिडंडेंसी है, और रिडंडेंसी हमारे यहाँ पे हो रही है जहाँ हमें पता ही नहीं है और हर बंदा दूसरे के काम को रेप्लिकेट कर रहा है बाहर, जहाँ जिनके मॉडल्स को हम पढ़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिसको मैं लेके एज एकेडमिक मॉडल भी आपको पढ़ा सकूं कि जी बहुत अच्छा एकेडमिक मॉडल है, लो इसे यहाँ से पढ़ लेते हैं। जितने भी पेपर हैं वो फॉरेन ऑथर्स के हैं, फॉरेन प्रोग्राम्स हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो उसमें एक सिस्टमैटिक वे होता है कि फंडिंग किस तरह से मिलती है, और पब्लिक मनी कभी भी रिडंडेंट प्रोग्राम्स के लिए नहीं जा सकती। उसके ऊपर भी चेक एंड चली भी जाती है, वहां पे भी स्कैम्स होते हैं, लेकिन इस तरह के स्कैम्स हर रोज वहां पे नहीं होते कि पब्लिक मनी जाके रिडंडेंट प्रोग्राम पे लगनी शुरू हो गई और बाद में जाके इसको आप करें कि पहले ये चल रहा था, मतलब चकवाल में ये चल रहा था तो यहाँ पे क्यों शुरू करा दिया। तो वो उस चीजों से भी आप खुद सोचें कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर कल्चर कलेक्शन अपनी डोमेन बढ़ा ले और पकड़ के हर शहर में एक कल्चर कलेक्शन होनी चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। वो उसने अपनी नेटवर्किंग करनी है और बीआरसी में एंटर होना है, ठीक है? वो डेफिनेटली जब हम ओईसी डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो वहां से वो सारी अंडरस्टैंडिंग मिलनी शुरू हो जाती है। सो यू शुड नॉट बी मच वरीड अबाउट इट। बट ये मैंने आपको बताया था कि कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए टर्म्स आपके लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये जो था हमारा पेपर। मैं ये पूछ रही थी कि इसमें से क्या किसी ने पढ़ा है? देखिए इसमें जो बेसिकली था कि वो डिफरेंट उसके उन्होंने बनाए हुए हैं, सबको इन्होंने ऐड किया हुआ है इसके अंदर। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी इन्होंने ऐड किया हुआ है उसमें। उसके अंदर डिफरेंट एग पैरासाइट्स हैं, उनके हवाले से भी बात की हुई है, और फिर जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं। और ये कुछ समझ आया कि मैम उन्होंने एक कलेक्टिव सा एक बना दिया है उन सबका एनवायरनमेंट के हवाले से रिलेटेड। वो जो एडवांस लेवल था, एडवांस लेवल से बीआरसी का लेवल है, ठीक है? कि जो कल्चर कलेक्शन थे या रिसोर्स सेंटर थे डेजिग्नेटेड एरियाज के, उसको वो नेटवर्किंग में ले आए हैं, ऐसे ही है ना? उसको वो कंसोर्शियम पे ले गए हैं, ठीक है? और वो नेटवर्किंग के थ्रू अब ऑपरेट कर रहे हैं। अब वो इंडिविजुअल अपनी अपनी जगह भी ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उनमें रिडंडेंसी नहीं है, उनके रिसोर्सेज कंबाइन हो गए हैं, उनकी एक कंबाइंड वेबसाइट या एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म बन गया है, एक कंबाइंड टीम भी आप कैसे बन गई है कि कुछ टेस्ट वो एक जगह, बेसिक टेस्ट हर कोई अपने अपने कर रहा है, लेकिन जो मेगा फैसिलिटी है वो किसी एक जगह पे एक चीज की है, दूसरी जगह दूसरी चीज की है, और तीसरी जगह तीसरी चीज की, और इस तरह से वो स्टाफ भी डिवाइड हो गया है, और बड़े आराम से उन्होंने सब कुछ करना शुरू कर दिया, लेकिन रिसोर्स का बर्डन डिवाइड कर दिया है। ये जो शुरू से मैं चीज आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ बिकॉज कि सस्टेनेबल नहीं हो रहा। सस्टेनेबल क्यों नहीं हो रहा? कि आप अपना बर्डन बढ़ाई चले जा रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि अपने बर्डन को शेयर करना शुरू कर दिया थ्रू द नेटवर्किंग, ठीक है? This is what, because as I have initiated today my talk कि जितनी भी डेवलपमेंट है in the microbial systematics particularly past 40 years की, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट पाइपलाइन जो कि रिलायबल है वो हमारी समझ में आ गई है। ऐसे ही है ना? हर नए पेपर में एक नई पाइपलाइन नहीं है। रोज एक नया मेथड उसमें घुसा चला आ रहा है कि अब ऐसे आइडेंटिफिकेशन करो, अब ऐसे। रिलेटिवली हम एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे हैं। यस, इट विल चेंज, इट विल टेक सम टाइम, बट वी डू नॉट रहती हूँ मैं अपने क्लास में प्रॉमिस फॉर 100 years, लेकिन इट हैज फॉर 60 years।
इवन बिफोर दैट उसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ने नोज डाउन कर दिया एंटीबायोटिक के प्रॉमिस को और हमें ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाना पड़ा। इसी तरह से जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फॉर सिस्टमैटिक्स पर्पस रिलेटिवली इट इज एट स्टेबल ग्राउंड। पहले हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड था 1970s के एरा में डीएनए हाइब्रिडाइजेशन का, बिकॉज यू नो ये चीज मैंने इसका पेपर मेरे पास है लेकिन मैंने खोल के नहीं पढ़ाया। यू हैव टू क्यूमुलेट योर नॉलेज बीइंग माइक्रोबायोलॉजी एंड बीइंग द स्टूडेंट ऑफ सिस्टमैटिक्स कि आपको पता है कि किस वक्त आप कौन सी चीज पढ़ रहे हैं और उसको एक बच्चा अगर पजल देते हैं, अगर पजल के पीसेस के बैक पे आप 1 2 3 4 तो वो उसको जोड़ लेगा, लेकिन अगर आप उसको एक पिक्चर दिखा देते हैं और कहते हैं कि अब तुम इसको जोड़ो, तो मेरे ख्याल है वो उसको अगर जोड़ेगा तो वो ज्यादा उससे सीखेगा। ठीक है। सिमिलरली मैंने जो सिस्टमैटिक्स के पैटर्न में हेलो यस मैम आ रही है आवाज। यस मैम आ रही है आवाज। यस मैम आ रही है आवाज। अब आ रही है? मेरे पास आ रहा था कि मेरा होल्ड चल रहा है। मैम इंटरप्शन थी आपकी वॉइस में। टॉकिंग अबाउट कि यू नो इसका एरा डिफाइंड है वैसे तो कि 1900 में कैसे था और 1910 में कैसे था, और बहुत चेंज नहीं है कि 1910 में अगर फिनोटिपिक मेथड थी और 1950 में जो है वो उसके साथ सीरोलॉजी एंटर होगी और 1970 में डीएनए हाइब्रिडाइजेशन एंटर होगी, और ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। लेकिन अगर मैं इसके पीछे 1 2 3 4 5 लिख देती हूँ और मैं कहती हूँ अब इसको जोड़ो, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी इनपुट एज अ क्रिटिकल रिसर्चर 0 है। ठीक। जो मैं ये कह रही हूँ कि जो ये करते हैं कि बच्चों को पजल देते हैं और पीछे नंबर भी लिख देते हैं कि अब बच्चे इसको जोड़ ले, तो वो तो ठीक काम नहीं है। तो मैं इसके पीछे नंबर नहीं लिखूंगी। एज आई हैव सेड कि मेरे पास इसके ऊपर भी पेपर है, बट नेक्स्ट जब मैं आपको एक असाइनमेंट की तरफ लेके आ रही हूँ, जो ऑन क्लास हमारी असाइनमेंट होती है टुवर्ड्स दैट, आई विल बी आस्किंग यू टू वर्क इनटू टुवर्ड्स योर नॉलेज. So drastically we have standards of the DNA hybridization through the introduction of the 16S. Now, even development of the whole genome things and even the whole genome thing basically, or multi जो कि बहुत एक कमाल के प्रोसेस में जो 16S राइबोसोमल आरएनए का बहुत ही सिंपल टू गुड टू परफॉर्म, उसके साथ आपने डेवलप कर लिया अपना, उससे आगे नहीं है, उससे आगे जो पाइपलाइन सेटिंग है, ठीक है, वो डेवलपमेंट आपको पता है, एंड दैट इज क्वाइट स्टेबली हैपनिंग, नॉट चेंजिंग एवरी डे। ये लास्ट 40 इयर्स में सोफिस्टिकेटेड डेवलपमेंट जरूर है, बट एक स्टेबल डेवलपमेंट भी है। उसमें हर रोज पिछली चीज को आप नहीं छोड़े और अगली चीज को नहीं पकड़े कि अब तो रियल टाइम पीसीआर आ गया, अब हम इसको छोड़ देते हैं, अब तो हमारे पास सीक्वेंसिंग आ गई, तो हमने सबने एनजीएस पे जाना है, 16S को नहीं करना, ये चीज नहीं हो रही है, ठीक है, सिस्टमैटिक्स के अंदर जब हम बात करें तो। एंड देन फ्रॉम दिस वी हैव एंटर्ड इनटू द you know after reliable identification through a pipeline, with the use of the techniques and information technology and tools and everything, we have entered into this approach where we are considering that we have to underpin the microbial resources through the culture collections. ठीक है, ये चीज है। और इसके ऊपर एज आई हैव सेड कि ये वाला अगला पेपर जो है इसको हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, और प्लस में एक छोटी सी आपकी काइंड ऑफ एक हैंड्स ऑन रखूंगी यहाँ पे, जो आप मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है।
कैटलॉग याद करनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कल्चर कलेक्शन के ऊपर आप डेवलप हो गई है, ठीक है। और ये 3 तरह की कल्चर कलेक्शंस हैं जो 3 तरह के सैंपल्स के ऊपर काम कर रही थी और फिर उन्होंने उसको मर्ज किया है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ें ताकि फिर हम अगली क्लास में इस टॉपिक को खत्म करें और फिर मैं आपकी एक जो वर्किंग असाइनमेंट है वो कल्चर कलेक्शंस के ऊपर करवाऊंगी, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में, अगर हमारी ऑनलाइन नहीं होती अगले हफ्ते तो। क्लियर? यस मैम। चलो ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनको अभी काफी मौका मिल गया है मजीद इसको पढ़ने का। पढ़ने का मतलब होता है कि यू जस्ट स्कैन थ्रू द पेपर एंड देन टेक पार्ट इनटू द डिस्कशन। मैं आपकी अटेंडेंस डाउनलोड कर लूं और फिर उसके बाद आप अपनी अगली क्लास में जा सकते हैं ब्रेक लेके 5-7 मिनट की। मैम जो ईद से पहले आपने वो मेंटेनेंस प्रिजर्वेशन वाला लेक्चर दिया था उसकी पीपीटी काइंडली शेयर कर दें। मैं शेयर कर दूंगी। असल में वो मेंटेनेंस पीपीटी भी डालनी है, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं इसमें से भी, मैं एज आई सेड कि मेरे पास बहुत सारा वो लिटरेचर है, लेकिन ये चूंकि पूरा कोर्स इस चीज को डील नहीं करता, हम अपनी रिसोर्सेज से उन बताएं कि क्लास में आए, बिकॉज अगर मैं सब चीजें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं सब शेयर कर दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास अगर 5 डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं मेरे कंप्यूटर पे, अगर आपसे मैं शेयर कर रही हूँ तो आपको पता है कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, किताब है मेरे पास। तो अगर मैं ये सारे के सारे आपसे डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी तो इट विल बी टू वेरी मच फॉर यू पीपल, सो आई अर्ज यू कि प्लीज कम टू द क्लास। फिर उसके बाद जब मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी तो फिर आपको पता होगा कि मैडम ने पढ़ाया क्या था। अदरवाइज तो फिर आप रट्टा लगाते रहेंगे इन 3-4 पेपर्स का कि इतने सारे शेयर किए हैं, पढ़ाए भी होंगे इस तरह से, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो yes, अभी आज के लेक्चर पे भी अगर शेयर करूंगी 5 डॉक्यूमेंट तो इट विल बी टू वेरी मच। कोशिश करूंगी कि पिक करके पीपीटी पे डाल दूं, बट स्टिल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कम इन क्लास। आई एम रियली हैप्पी विद द पार्टिसिपेशन, जो 20-30-25 आ जाते हैं, लेकिन जो 4-5-6 नहीं आ पा रहे, दे शुड पुट देयर एफर्ट्स इन के वो क्लासेस को इंश्योर करें। ओके मैम तलहा का मैसेज आया था, उसका नेट का इशू है तो इस वजह से नहीं ज्वाइन किया उसने। हाँ, और मैं इसीलिए वो बहुत ज्यादा लिटरेचर डाल भी नहीं रही हूँ, क्योंकि लिटरेचर डालने का मतलब है कि क्लास में नहीं आया और डाउनलोड किया और उसको गोल के पीना शुरू कर दिया और फिर भी ब्लैंक के ब्लैंक, और मतलब पेपर परफॉर्मेंस फिर भी उस तरह से नहीं होती, वो कॉपी पेस्ट वाली आ रही है। तो इसलिए क्लास में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद शेयर करूंगी डॉक्यूमेंट तो आपको पता होगा कि क्या पढ़ा था, क्या डिस्कस किया था, ठीक है। अभी मेरे पास अटेंडेंस भी डाउनलोड नहीं हो रही, पता नहीं क्या इश्यू है। चलें आप लोग लीव करें, मैं एक दफा और कोशिश कर लेती हूँ। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। वो मैं डिसाइड नहीं कर सकते, तो आपकी